A presentation was sent to you all yesterday. Have you all gone through that presentation? Yes, sir. Yes, so there is no doubt in that, I believe. Is there any doubt in that? If you are not answering me my questions, I'm sorry, I cannot move on. I want my class to be extremely responsive. सर अभी तक तो नहीं है. Then why not? Yes, everyone doesn't include only Rahul, all right? Everyone means everyone over here. There is only one part remaining in the chapter, that is price ceiling and price floor. After that, this chapter is completed, and then there is one more chapter, that is the last one, which we will do at the end after doing the statistics part. Why? Because that chapter has been removed from your syllabus of class 11th according to the this year's exam pattern which has been sent by CBSE बोर्ड. ओके 70% के अंदर एक वो चैप्टर है जो पूरी तरीके से राउंड अबाउट रिमूव्ड है, बिकॉज उसके अंदर मोनोपोली ओलिगोपोली और है जो हमने डिस्कस कर लिया है. तो जितना हमें जानना जरूरी है उतना हमने राउंड अबाउट डिस्कस कर लिया है. सो वी वोंट नीड टू नो फर्दर. तो मैं उस चैप्टर को एक बार साइड रख सकता हूँ. सो इफ यू वांट कि हाँ हम लोग कंटिन्यू करें with the next part, that is price ceiling and price floor, तो obviously I seriously want you all to be responsive enough, because I am not getting the answers, and when I am not getting the answers, so I am not bound to teach you also. I'm sorry, I am not the one who is bound to teach you up till I am not getting the answers from your side. Again repeating the question, have you all went through that presentation which I have sent you all yesterday? Yes, sir. Yes, sir. So can I ask the question from that? All the players who are not switching on, all the students, those who are not switching on the video, please switch it on, otherwise I'll have to remove you people from the class. I'm saying you. This is high time. Stop playing with the videos. Switching it on, switching it off. Don't do that. Okay, so if that is the case scenario that you have gone through that, so what we have read yesterday was obviously the simultaneous shifts in demand and supply. All right. So suppose if there is a what do I say? There is a rightward shift and a leftward shift in the rightward shift in demand and leftward shift in the supply. So what will happen to the quantity? There is a rightward shift in demand and leftward shift in the supply. So what will happen to the quantity which is being supplied in the market? So quantity will be less. Why and how? सर क्योंकि सप्लाई बड़ी है हो गया, सप्लाई कम है पर डिमांड बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली क्वांटिटी तो there is a rightward shift in the demand and leftward shift in the supply. So what will happen? So आप ये कह रहे हो कि because there is a rightward shift in the demand and there is a leftward shift in the supply, so the quantity supplied will decrease. Is he right or is he wrong? Sir, he is right. Supply गिरी है तो quantity गिरेगी. Okay, fine. Leftward shift in the and if I say that there is a rightward shift in the demand and there is no shift in the supply, what will happen? Quantity is the same.
quantity is Sir, still the quantity. same, but what happens to the price? Price will increase. Goes up. Price will go up. Are you Yes, sir. sure, both of you? Yes, sir. ओके फाइन. तो अब अगर हम लोग सपोज करो कि एक नॉर्मल मार्केट के अंदर है और आप देख रहे हो कि जो प्राइस है, certainly the rightward shift in demand is too much, and because of that the supply is not coming out, obviously, because the rightward shift in demand is so much that we cannot keep pace with the supply. So what will happen? The price will increase a lot. By a Will lot. increase a lot, and that's where we go for price ceiling or price floor. That's where the government comes in, okay, to play its role, that nothing should shoot up after a point of time when it is a need, when it is a thing of need for the common people. All right, why? Because if that happens, the market can get crashed. Now, in the same way, when we talked about share market, we said that there is a freezing point in the share market. Am I right? Which is being controlled by SEBI, SEBI, Securities Exchange Board of India. Okay, like that only in the market also, we come with a price ceiling and a price floor point, where the government steps in and tries to control the whole thing in the market. Reason being that if it is not controlled, then it will have a very negative impact for the consumers, for the suppliers, sometimes for the consumers, sometimes for the suppliers and all. Okay, in your book, these are the last, in this chapter, these are the last two parts, price ceiling and price floor. Okay, if you have the book, please open it up and see to it. Page number 84, according to my book, which I am having right now, page number 84 and 85. Please look at it. There are two topics, price ceiling and price floor, which are the last topics of this chapter. It is being written over there, the first few lines I am saying to you all. It is not very uncommon to come across instances where government fixes a maximum allowable price for certain goods. The government imposed upper limit on the price of a good or service is called price ceiling. मतलब जब किसी भी प्रोडक्ट का अपर लिमिट एक सेट किया हुआ होता है कि भैया इसके ऊपर आप प्राइस को नहीं लेके जा सकते, दैट इज कॉल्ड प्राइस सीलिंग. And when there is a lower limit which has been fixed, that is called price floor, कि इसके नीचे प्राइस नहीं जाएगा. अब इसका इफेक्ट क्या होता है डिमांड और सप्लाई पे और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, हमें उसको डिस्कस करना है आफ्टर I see that all of you have switched on your video. Anjali Sharma, Bhanu Sethia, Karthik Kuvera, Palak and Kushal Goyal. Sir, I think I would not on the video because video on करती मेरी क्लास मतलब नेटवर्क नहीं आ रहा है. वीडियो ऑन कर रही हूँ और क्लास जा रही है, इसलिए इतनी देर से Okay, I get it. So chalo, let's start with the thing. We have a small presentation for that. We are going to see that how does price ceiling and price floor affects everything. Okay. So here we go. Government policies that alter the private market outcome, price controls measures. Price control करने का जो measures है उनमें से आते हैं ये दो measure, price ceiling and price floor. What do you mean by that? Price ceiling, a legal maximum on the price of good or service. Example, rent control. जब हम किसी भी चीज का rent control कर रहे होते हैं, that is what is price ceiling. आप अगर एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, if you are traveling from aeroplane, आपने देखा होगा जैसे जैसे आपका टाइम करीब आने लगता है वैसे वैसे प्राइस ऊपर जा रहे होते हैं, शूट अप कर रहे होते हैं. जैसे सपोज करो आपने 2 महीने पहले एरोप्लेन टिकट बुक कराई है और आप जस्ट 2 दिन या 3 दिन पहले एरोप्लेन टिकट बुक करा रहे हो, उसमें आपके प्राइस का बहुत बड़ा चेंजेस आ जाता है. एम आई राइट? अगर किसी ने कभी भी प्लेन से ट्रैवल किया है या प्लेन के बारे में पता किया है तो ये जो शूट अप होता है उसके लिए भी जो गवर्नमेंट है वो कई बार ट्राई करती है कि वो एक पॉइंट रखेगी ऊपर का या नीचे का. तो ये जो प्लेन के प्राइस के लिए जो ऊपर की प्राइस एक रखी जाती है,
जहां से ज्यादा कोई भी कंपनी उससे ज्यादा बढ़ा नहीं सकती, दैट इज कॉल्ड प्राइस सीलिंग, द कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट. व्हाई? बिकॉज अदरवाइज plane can ask for any amount, the private what do I say, private companies can ask for any amount which can be legally which can be very dangerous for the basically the demand and supply outcome. बिकॉज अगर आप इस तरह से शूट अप कर सकते हो प्राइस को, तो ऑब्वियसली वो डेंजरस है सोसाइटी के लिए एज अ होल, बिकॉज वो सिर्फ प्रॉफिट के बारे में फिर बात हो रही है, जो ट्रैवलिंग है, जो उसका मेन आउटकम है, वो पीछे रह जा रहा है. ठीक है. प्राइस फ्लोर क्या होता है? लीगल मिनिमम ऑन द प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस. एग्जांपल मिनिमम वेज. अब आपको पता होगा कि इंडिया में एक वेज लिमिट लगाई गई है कि मिनिमम वेज, अगर कोई बंदा काम करता है 8 घंटे की ड्यूटी देता है तो उसको इतना तो देना पड़ेगा. ठीक है. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द प्राइस फ्लोर. इसका मतलब ये कि उसके नीचे कोई भी कंपनी, चाहे कोई भी बंदा कहीं पे भी काम कर रहा हो, उसके नीचे नहीं दे सकता. ओके, दैट इज कॉल्ड प्राइस फ्लोर. तो ये दो चीजें होती है जो मार्केट के अंदर है. अब मार्केट फॉर अपार्टमेंट्स, अगर हम इसका एग्जांपल ले लें कि अपार्टमेंट्स का जो रेंट का प्राइस है वो फिक्स किया हुआ है. से फॉर इंस्टेंसेस इक्विलिब्रियम प्राइस विदाउट कंट्रोल्स. अगर प्राइस कंट्रोल के बिना हम इक्विलिब्रियम प्राइस देखते हैं, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ अपार्टमेंट्स 300 है, जिसके सप्लायर्स हैं और डिमांड है. ठीक है. जो इक्विलिब्रियम प्लेस है वहां पर जो क्वांटिटी ऑफ अपार्टमेंट है दैट इज 300. आप यहां पर देख रहे हो, दिस इज the point which is the equilibrium quantity. ठीक है. सेम टू सेम इसी जगह पर $800 जो है वो बिकॉज ऑफ द मार्केट फोर्सेस, जो हमने रीड किया है अभी थोड़े दिन पहले से रीड करते आ रहे हैं कि सप्लाई और डिमांड जब साइमल्टेनियस शिफ्ट करती है तो क्या होता है, तो उसकी वजह से हमें पता है मार्केट इक्विलिब्रियम जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको कहते हैं. तो जब तक हम लोग सपोज करो प्राइस कंट्रोल नहीं लगा रहे हैं तो मार्केट इक्विलिब्रियम ये है, $800 इज द रेंटल प्राइस ऑफ द अपार्टमेंट्स एंड 300 आर द क्वांटिटी ऑफ द अपार्टमेंट्स. लेकिन जैसे ही हमने सपोज करो प्राइस कंट्रोल्स के बारे में बात करनी स्टार्ट कर दी, अब प्राइस कंट्रोल कैसे लगेंगे? ऑब्वियस सी बात है, प्राइस सीलिंग्स जो होते हैं अफेक्ट मार्केट आउटकम्स, वो मार्केट आउटकम्स को अफेक्ट करते हैं. अगर प्राइस सीलिंग इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर लगाए गए हैं तो दैट प्राइस सीलिंग इज नॉट बाइंडिंग. इसका मतलब क्या है? वो मार्केट आउटकम पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं. Why? Because that is set above the equilibrium price, जो कि मार्केट ने अपने आप तय करी है. जैसे यहां पर हो रहा है, इस ग्राफ में आप देख रहे होगे $1000 is the price ceiling. $1000 is the price ceiling. All right. अब अगर $1000 को आप प्राइस सीलिंग मानते हो और इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो $800 है, जो मार्केट ने अपने आप सेट किया है इक्विलिब्रियम पे पॉइंट पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका इफेक्ट मार्केट पे कुछ नहीं होगा. बट इन दी अदर केस सिनेरियो, अगर हम लोग दूसरे केस सिनेरियो पे जाएं जहां पर इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो तो $800 है, बट वो जो प्राइस सीलिंग है जो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल लगाया गया है वो है $500 का. तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा प्राइस सीलिंग की वजह से? बहुत सिंपल सी चीज है. अगर प्राइस सीलिंग $500 पर है तो बहुत सारे सप्लायर्स जो हैं वो सप्लाई नहीं करेंगे. सो देयर विल बी अ शॉर्टेज ऑफ द थिंग. आप अगर अपार्टमेंट्स के बारे में बात करो तो 400 अपार्टमेंट्स की नीड है. ठीक है. 300 अपार्टमेंट्स इज द इक्विलिब्रियम. जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसके भी नीचे 250 अपार्टमेंट्स ही लोग सेल कर रहे होंगे या फिर वहीं पर रेंट पे आने दे रहे होंगे लोगों को. रीजन बीइंग कि $500 के ऊपर आप नहीं जा सकते. सो दिस एक्चुअली जो बाइंडिंग कॉन्स्टेंट होता है वो कई बार एक शॉर्टेज क्रिएट करता है मार्केट के अंदर. बट यहां पर जो चीज हमें ध्यान रखने की है, बिकॉज इट क्रिएट्स अ शॉर्टेज इन द मार्केट, आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट इक्विलिब्रियम के लिए जो है सप्लाई और डिमांड काम करना स्टार्ट कर देगा और फिर अगेन $800 पे चला जाएगा. हमें पता है $800 जो प्राइस है वो इक्विलिब्रियम का प्राइस है, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने $500 कर रखा है, इसके ऊपर मार्केट के अंदर अपार्टमेंट्स नहीं जाएंगे, रेंट पे लोग नहीं जा रहे होंगे. व्हाई? बिकॉज पीपल आर नॉट रेडी और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक कंट्रोल डाल रखा है, दैट इज प्राइस सीलिंग. ठीक है. तो ये कई बार एक नेगेटिव आउटकम भी लेके आती है, दो समटाइम्स इट ब्रिंग्स अ पॉजिटिव आउटकम आल्सो. फॉर इंस्टेंस जो लोग $800 में दे रहे थे, रेंट दे रहे थे, से फॉर इंस्टेंस रेंट पे घर दे रहे थे, तो उनका तो ऑब्वियस सा बात है घर तो ऑलरेडी बना हुआ है, उसका ऑलरेडी खर्चा हुआ है. तो हो सकता है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम दे स्टार्ट थिंकिंग कि ठीक है ना यार, प्राइस सीलिंग के अंदर भी अगर लोग आते हैं हमारे पास तो एटलीस्ट कुछ खर्चा उठेगा हमारे घर का, तो मे बी इट विल अफेक्ट in a positive way after a point of time in the market. But
व्हेन वी स्टार्ट विथ इट, प्राइस सीलिंग जनरली सप्लाई का शॉर्टेज क्रिएट कर देती है अगर इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे प्राइस सीलिंग लगाई गई है तो। ऑलराइट एवरीवन, अंडरस्टूड? अगर हाँ तो प्लीज रेज योर हैंड एवरीवन। थैंक यू सो मच। अब जनरली क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस विदाउट प्राइस कंट्रोल के ऊपर जो जनरली जो अनस्किल्ड वो लेबर होती है उसको सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि उनके वेजेस जो होते हैं वो बहुत लो होते हैं। अब अगर अनस्किल्ड लेबर के लिए गवर्नमेंट ने कोई कंट्रोल नहीं लगाया है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो जनरली प्राइवेट कंपनीज है या फिर कोई भी जगह है वो लोग उसका फायदा बहुत ज्यादा उठाने लगेंगे। बिकॉज इंडिया, लेट्स सी इन द केस ऑफ इंडिया, let's see in our country's case कि यहाँ पर बहुत सारे अनस्किल्ड लेबर्स हैं प्रचुर मात्रा में। तो when there are so many people who are unskilled and they are ready to work, तो सप्लाई बहुत ज्यादा है। और हमने क्या पढ़ा था, जब सप्लाई बहुत ज्यादा होती है तो ऑब्वियसली जो पीपल है, जो लोग जिनके यहाँ उनको जाना है और वहां पर काम करना है, वो लोग उनके प्राइस को नीचे गिरा देंगे, क्योंकि उन्हें पता है अगर ये काम नहीं करेगा तो कोई और कर लेगा इस प्राइस पे आके। किसी को भी पैसा चाहिए 200 रुपया नहीं तो 100 रुपया में भी काम कर देगा वो। क्योंकि अगर मैं सपोज करो कंपनी कह रही है 100 रुपीज इज द डिमांड विच ही सेइंग कि हम लोग को 100 रुपीज में वर्कर्स चाहिए। अब उसने किसी वर्कर को बुलाया, 2-4 वर्कर आए, वो कहते नहीं हम लोग 150 रुपीज चार्ज करेंगे। कंपनी को पता है that there are many unskilled laborers in the market who are dying to work, so what they will do, नहीं हमें आपका काम नहीं चाहिए, let them come up, हम 100 रुपीज में काम ले लेंगे। That's why गवर्नमेंट क्या करती है in this kind of market, वो एक प्राइस फ्लोर पॉइंट लगाती है। तो जब प्राइस फ्लोर पॉइंट लगता है तो जनरली ये एक बहुत अच्छा काम करता है कि आप उसके नीचे कम से कम लोगों को प्राइस देके नहीं रख सकते काम के लिए, ठीक है? जैसे वेज पे होता है इंडिया के अंदर, मिनिमम वेज का काम किया हुआ इंडिया में, ठीक है? तो प्राइस फ्लोर बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस अगेन इज नॉट बाइंडिंग। अगर सपोज करो जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो $4 है और जो प्राइस फ्लोर लगाया वो $3 लगाया हुआ है, तो वो बाइंडिंग नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी द इक्विलिब्रियम प्राइस इज अबव, वो ऊपर सेट किया गया है, जितना वेज मिलेगा बंदे को उसके ऊपर सेट किया हुआ है, तो इसका मार्केट आउटकम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर वो उसके नीचे सेट किया हुआ हो, प्राइस इक्विलिब्रियम पॉइंट सपोज करो हो 4 और $4 के ऊपर प्राइस सेट किया हुआ हो वेज का कि मिनिमम जो प्राइस फ्लोर है वो $5 है, तो फिर क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है, बिलो द फ्लोर विल बिकम इलीगल, उसके नीचे पे करना इलीगल हो जाएगा, तो ये एक बाइंडिंग कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या होगा, एक सरप्लस क्रिएट हो जाएगा मार्केट के अंदर वेजेस पीपल का, जो लोग काम करने के लिए रेडी हैं, बट कंपनीज जो है वो काम करने के लिए रखेगी नहीं। रीजन बीइंग कि वो इतना देने को रेडी नहीं है मार्केट के अंदर, बिकॉज अगर वो इतना देती है तो बहुत सारी कंपनीज का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो मार्केट में वैसे भी सेल नहीं कर पाएगी। हाँ राहुल सिंह पवार, क्वेश्चन पूछो। तो सर ये लगाना चाहिए या नहीं चाहिए? ये अब डिपेंड करता है इकोनॉमी टू इकोनॉमी, ठीक है? इंडिया में तो लगाना चाहिए, अगर इंडिया में नहीं लगेगा तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। अभी अच्छा एक बात बताओ, वी पीपल आर सीइंग द फार्मर्स प्रोटेस्ट, ऑलराइट? हम लोग जो फार्मर्स प्रोटेस्ट देख रहे हैं उसका बेसिक पॉइंट क्या है, वो किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बेसिक पॉइंट क्या है उसका? एक मिनिमम प्राइस। हाँ, एमएसपी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, am I right? Yes. तो वो Yes. एमएसपी के लिए क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? वो इसीलिए तो कर रहे हैं ना एमएसपी के लिए प्रोटेस्ट, क्योंकि उनको पता है कि अगर एक मिनिमम सेलिंग प्राइस नहीं हुआ तो हो सकता है आने वाले टाइम में जो कंपनीज है वो उनका फायदा उठा ले, वो पूरा का पूरे। अब देखो बड़ी बड़ी कंपनीज है, वॉलमार्ट हो गई, रिलायंस हो गया, अमेजन हो गया, हो सकता है ये सारे के सारे इसमें भी कूद जाए। दे ऑल स्टार्ट वर्किंग इनटू दिस कि हाँ हम उनसे डायरेक्टली लेते हैं, तो एक वक्त आएगा जब वो लोग उनसे डायरेक्टली ले रहे होंगे। अब मार्केट में कोई और बड़ा प्लेयर है ही नहीं, 2 प्लेयर या 3 प्लेयर है। अब वो लोग डिसाइड कर रहे होंगे कि हमें कितना पैसा देना है और कितना नहीं देना है फार्मर्स को। तो हो सकता है कि एक टाइम के बाद जो आज उनको बहुत फायदा हो रहा हो, एक टाइम के बाद उनको नुकसान होना स्टार्ट हो जाए, बिकॉज वो लोग ही डिसाइड कर रहे हैं, बिकॉज दे आर दी ओनली प्लेयर्स इन द मार्केट जो बेचेंगे, जो खरीदेंगे, सब कुछ करेंगे। दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग फॉर एमएसपी। बट ये सिर्फ वन साइड ऑफ द कॉइन है। जो सेकेंड साइड ऑफ द कॉइन है वो ये है कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री।
यहाँ पर स्टेट अपने आप एक एमएसपी देती है, जैसे राजस्थान स्टेट ने भी अपनी एक एमएसपी लगाई हुई है कुछ चीजों पर, वैसे ही पंजाब ने लगाई हुई है। जैसे पंजाब ने अभी अपने जब स्टेट का बजट था और था, उसमें उन्होंने पास किया था कि हम एमएसपी देंगे और ये एमएसपी मिलेगा, और हम जो सेंट्रल लॉज लेके आ रही है फार्मर बिल, उसको हम अपने यहाँ पर लागू नहीं करेंगे। तो पंजाब के किसानों के लिए तो ऑलरेडी काम हो गया था, बिकॉज स्टेट लॉज आर पावरफुल इनफ कि वो इस सेंट्रल लॉ को ना लगने दे वहां पर, ठीक है। लेकिन फिर भी पंजाब के जो फार्मर्स हैं वो ऑन यहाँ पर आए हुए हैं, दिल्ली में धरना दे रहे हैं, हाईवे जाम किया हुआ है। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। मेरे हिसाब से बहुत ही पॉलिटिकल है, बिकॉज ऑलरेडी जब पंजाब की गवर्नमेंट ने कह दिया है कि हम सेंट्रल जो लॉ है उसको यहाँ पे लागू नहीं करेंगे, जो सिस्टम चल रहा है वही चलाएंगे, तो फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है वहां पर, नंबर वन। नंबर टू, सेंट्रल कह रही है ऑलरेडी कि एमएसपी हम नहीं हटा रहे, हम एमएसपी कंटिन्यू कर रहे हैं, बट द पीपल दोज हु हैव गॉन देयर इज नॉट डिमांडिंग ओनली एमएसपी, व्हाट दे आर डिमांडिंग इज कि आप पूरा बिल ही चेंज करो, उसके अंदर आप एमएसपी हमेशा के लिए लागू कर दो हर प्रोडक्ट के लिए। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इंडिया इज अ कंट्री विच इज वेरी डेमोक्रेटिक, और यहाँ पर हर स्टेट के पास अपना पावर है। अगर सेंट्रल ने ये लॉ लगा दिया कि आपको एमएसपी प्रोडक्ट पे रखनी ही पड़ेगी, तो देयर आर मेनी स्टेट्स हु आर नॉट केपेबल टू गिव द एमएसपी, लाइक बिहार, लाइक बंगाल, देयर आर मेनी स्टेट्स जो इतना कमाती ही नहीं कि वो एमएसपी दे पाए। उनको तो कंपनीज के हवाले ही रहना पड़ेगा, या फिर मार्केट में जो सेल हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही रहना पड़ेगा। तो फिर वो पैसे कहां से लाएगी? दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर मेनी ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया। तो ये अगर वो करती है तो ये अगेन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट चला जाएगा कि आप ऊपर से अपना पावर लगाना चाहते हो। दैट्स व्हाई व्हाट गवर्नमेंट हैज डन इज कि हम जहां जहां पे एमएसपी लगी हुई है वहां से हम हटा नहीं रहे। व्हाट वी आर डूइंग इज हम प्राइवेट कंपनीज को आने का एक रास्ता दे रहे हैं, सो दैट जो प्राइस है उसके ऊपर शूट अप करे प्राइस, और जो फार्मर्स है उनको पैसा उससे ज्यादा मिले। दिस इज द होल केस सिनेरियो जो प्रॉब्लम चल रही है। अब यहाँ पर जो बाइंडिंग कॉन्स्टेंट है, जो फार्मर्स है वो यही डिमांड कर रहे हैं एमएसपी। मैं इसको खाली समझाने के लिए कह रहा हूँ, वो क्या है, वो बाइंडिंग कॉन्स्टेंट डिमांड कर रहे हैं, और वो बाइंडिंग कॉन्स्टेंट ऑब्वियसली वो डिमांड कर रहे होंगे जो कि मार्केट इक्विलिब्रियम के ऊपर होगा, क्योंकि अगर नीचे होगा तो उनको डिमांड की जरूरत ही क्या है, वो ऊपर चाहते हैं, और मार्केट इक्विलिब्रियम के नीचे चाहते हैं ऑब्वियसली। तो मार्केट इक्विलिब्रियम जो सेट हो रहा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाइंडिंग कॉन्स्टेंट जो है वो आप नहीं चाहते कि जनरली सेट हो जाए। हो सकता है कि आज मार्केट इक्विलिब्रियम से फॉर इंस्टेंस 400 रुपीज अ टन है, आने वाले टाइम में वो बढ़ के मार्केट इक्विलिब्रियम ऑब्वियसली ऊपर जाएगा और 500 और 600 रुपीज हो जाएगा। लेकिन आपके जो बाइंडिंग कॉन्स्टेंट है उसमें ये दे दिया कि आपको उनको 500 रुपीज अ टन देना ही पड़ेगा फार्मर्स को। तो एक बात बताओ, 400 रुपीज अ टन मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट है और 500 रुपीज अ टन उनको देना ही पड़ेगा, तो ये जो 100 रुपीज अ टन का लॉस है वो कंपनी कहां से उठाएगी? so they will buy less product और उस वजह से हाँ, कम तो अगर लेस farmers का प्रोडक्ट होगा माल तो सप्लाई बिकेगा। भी लेस हो जाएगी ना। तो अगेन देयर विल बी अ प्रॉब्लम इन द मार्केट एरिया। मार्केट तो को क्या तो प्रॉब्लम इंटरफेयर हो ही रही नहीं है। है? इसीलिए हम लोग जनरली कहते हैं कि जो मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो बेस्ट होता है। तो प्राइस सीलिंग जो होती है वो वेज में लगाई जाती है। उसका रीजन ये होता है, जैसे जो हमारे वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, उनका एक मिनिमम प्राइस सिनेरियो दिया हुआ है, शायद 250 या 275 रुपीज है पर डे का, जो आपको मिनिमम देना ही पड़ेगा उसको अगर वो काम कर रहे हैं तो, विच इज गुड इनफ। क्योंकि अगर वो नहीं लगेगा तो प्राइवेट कंपनीज जो है या प्राइवेट सेक्टर जो है, कंस्ट्रक्शन में जो लोग लगे हुए होते हैं उनका फायदा उठाना स्टार्ट कर देंगे कि हाँ ठीक है हम इतना भी नहीं देंगे आपको। बट बिकॉज उन्हें पता है कि इतना रुपया तो मिनिमम है, तो जो कंस्ट्रक्शन में भी काम करने आ रहे हैं, जो अनस्किल्ड है, जो ईंटें उठा रहे हैं, जो सीमेंट उठा के इधर उधर कर रहे हैं, उनको एक बेनिफिट ये हो रहा है कि उनको एक मिनिमम वेज प्रोवाइड हो रहा है। दो कई जगह पर ऐसा होता है कि लोग देते नहीं है और उनको मना कर देते हैं, बात मत करो। अब ये तो करप्शन वाला केस है। ये वही बात हो गई कि बैंक के थ्रू मेरे को डिमोनेटाइजेशन कराना ही पड़ेगा, और बैंक में ही दो लोग करप्टेड निकल गए, तो आप क्या करोगे? तब तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती ना। इट्स टोटली ऑन यू कि कई चीजें जो है वो इंसान के ऊपर आके रुक जाती है, और वो हमें हमेशा करना पड़ेगा, उन पर विश्वास करना पड़ेगा। सो दैट्स द थिंग। अब अगर सर गवर्नमेंट, हाँ बोलो। सर अभी आपने बताया था कि जो कंपनीज है वो हमेशा इक्विलिब्रियम से कमी देती है, तो जो गवर्नमेंट है उसने प्राइस फ्लोर तो कम ही रख रखा है ना, तो जो कंपनीज है वो उसी में ही देगी हमेशा।
क्यों इक्विलिब्रियम पे देगी? क्यों देगी? कंपनीज हमेशा कम में देती है। गवर्नमेंट ने कहाँ रख रखा है? गवर्नमेंट ने उसके ऊपर रख रखा है। सर अभी आपने इससे पहले वाली स्लाइड में $3 कर रखा था ना। अरे यार वो तो अलग चीज हो गई ना, ये बिल्कुल अलग चीज है। दिस इज प्राइस फ्लोर है, $3 पे प्राइस फ्लोर है। ये मार्केट इक्विलिब्रियम है, ये कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये मार्केट की बात कर रहे हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम जो सेट हो रहा है वो $4 पे हो रहा है। कंपनी तो अलग अलग कंपनी अपने हिसाब से दे रही है। कंपनी को तो बाइंड किया जा रहा है कि आपको प्राइस फ्लोर पे देना पड़ेगा, $3 देना पड़ेगा। से फॉर इंस्टेंट एक कंपनी वो $2 देना चाहती है कि मैं $2 ही दूंगी, ठीक है, जो कि मेरे पास बहुत सारे लेबर्स हैं यार, इंडिया के अंदर अनस्किल्ड लेबर बहुत है, मैं $2 में भी अनस्किल्ड लेबर ले आऊंगी, लेकिन लीगली वो राइट नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि वो ऐसा कर रही है तो उस कंपनी के ऊपर केस हो जाएगा और उस कंपनी को बंद कर दिया जाएगा। इसीलिए प्राइस फ्लोर लगाया जाता है, ठीक है? यस सर। ठीक है, आप हाँ बोलो। ये जो अभी किसानों वाला है, ये बीच में कम क्यों हुआ था? क्या कम क्यों हुआ था? ये पहले किसान और दिल्ली गए थे, अब वापस जा रहे हैं, बीच में नहीं हो रहा था ना ये सब? बीच में नहीं हो रहा था बिकॉज बीच में शायद कोई बात हो गई होगी, कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ गया था, बहुत सारे रीजंस होते हैं इसके। प्लान कर रहे गवर्नमेंट हैं। ने कह दिया होगा कि हम इसके ऊपर काम करते हैं, देखते हैं। सी आप लोग, हम लोग को सोचना पड़ेगा कि एवरीथिंग वट एवर हैपन्स इन इंडिया, अगर कोई भी चीज, कोई भी लोग आके सड़क पे बैठ रहे हैं तो इट्स नॉट ऑलवेज ओनली फॉर वन रीजन कि वो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। देयर आर मेनी रीजंस व्हिच आर इन्वॉल्व्ड और हमें सारे रीजंस की तरफ ध्यान देना पड़ता है। नथिंग हैपेंस बिकॉज ऑफ ओनली वन रीजन, बहुत सारे रीजंस मिलके एक चीज होती है, ठीक है? इसमें पॉलिटिकल सिनेरियो आ जाता है, इसमें स्टेट वाइज सिनेरियो आ जाता है, इसमें एमएसपी आ जाती है, इसमें बहुत सारे लीगल डिमांड्स आ जाते हैं, बहुत सारे अनबियरेबल डिमांड्स आ जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें इस पे काम करती है। सर अब अगर ऐसे गवर्नमेंट मिनिमम वेज हटा दे तो अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व हो जाएगा? कैसे सॉल्व हो जाएगा? हट होएगा ही नहीं, बढ़ता जाएगा। कैसे सॉल्व हो जाएगा मेरे को बताओ आप। कंपनीज और लेबर रख लेगी अरे तो कैसे वो रख लेगी? अफोर्ड कर पाएगी। कंपनीज तो रखना ही नहीं चाहती ना मिनिमम। गवर्नमेंट ने खाली वेज मिनिमम नहीं कर रखा है, गवर्नमेंट ने ये भी कर रखा है बिकॉज इंडिया इज अ लेबर इंटेंसिव मार्केट, नॉट अ कैपिटल इंटेंसिव मार्केट। तो कंपनी को ये भी कहा जाता है जो इंडिया में आती है, जैसे सपोज करो बाहर से कंपनी अगर इंडिया में आती है तो एक शर्त उनको ये भी दी जाती है कि आप इंडिया के इतने लोगों को एम्प्लॉयड करोगे, वहां पर उस स्टेट के इतने लोग एम्प्लॉयड होने चाहिए आपकी कंपनी के अंदर, और वो भी मिनिमम वेज के ऊपर। मतलब इतना वेज तो आपको देना ही पड़ेगा, इससे कम में आप नहीं रख सकते उन्हें। ये सारी चीजें एक साथ मिलके काम करती है। नहीं तो वो लोग तो क्या करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव लगा लेंगे, मशीन्स ले आएंगे, मशीन ला के लगा देंगे, उनके सस्ता पड़ेगा ना। लॉन्ग टर्म में उनका एसेट है ना वो। यस सर, दिस ठीक इज है, गेटिंग इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स। ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स इज द कॉम्प्लेक्स थिंग। सारी चीजों को जब आप एक साथ ऐड करोगे तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग कुछ सेशंस हमारे ऐसे होने चाहिए जिसमें आप लोग मार्केट को थोड़ा स्टडी करो, अपने दिमाग में जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको लिखो और सवाल करो मुझसे, ताकि मैं उन सवालों के जवाब दूं, ताकि जो कॉम्प्लेक्स नेचर है वो सॉल्व हो जाए। सारी चीजों को मिक्स करो ना, आप बैठो इसके साथ, इनको मिक्स करो, रियल लाइफ सिनेरियो को देखो, रियल लाइफ में क्या क्या चल रहा है वो देखो, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ो, उसके अंदर कोई एक चीज समझ नहीं आ रही है, डिमांड सप्लाई बैंक को लेके कोई भी चीज, तो वो सवाल करो, ताकि हम लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो रियल लाइफ सिनेरियो के क्वेश्चन सॉल्व हो, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस निकले हमारे पास से, और वो इकोनॉमिक्स से रिलेट करें। बिकॉज ये तो अब आपको समझ आने लग गया, क्योंकि ये एक एक पॉइंट के ऊपर बात हो रही है। जब हम सारे पॉइंट को ऐड करते हैं तो क्या हो रहा है उसको समझने में जो मजा है ना वो कहीं नहीं है। ठीक है, तो आप लेके बैठोगे तब होगा, ऐसे नहीं होगा, आपको सवाल करना पड़ेगा मेरे से। सर हाँ बोलो देवांशी। सर पर अभी आपने बोला कि कंपनीज मिनिमम वेज नहीं देंगी अगर, तो फिर फार्मर्स तो सही है ना? मैंने कहा ना कि ये मे बी वाला सिनेरियो है, ये मे बी वाला सिनेरियो है, आने वाले टाइम में मे बी ऐसा होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो कि जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि हमने एक फार्म बिल पास किया है जिसके अंदर हम चाह रहे हैं कि सिर्फ एक ही जगह पर लोग आके बेच के ना जाए। से फॉर इंस्टेंस देवांशी तुम फार्मर हो, ठीक है, और तुम्हारे पास एक लैंड है जिसके अंदर तुम 10 टन गेहूं उगा रहे हो।
अब गेहूं को तुम ऑब्वियसली मार्केट में सेल करने जाओगे, एम आई राइट? तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि तुम खुले मार्केट में सेल नहीं कर सकते, तुम सिर्फ एक मार्केट जो तुम्हारे लिए बनाया हुआ है तुम सिर्फ वहीं सेल कर सकते हो, ठीक है? तो जो तुम्हारे लिए मार्केट बनाया हुआ है, जो एरिया तुमको बताया हुआ है कि ये मंडी है, यहाँ पर जाके सेल करो, उस मंडी के अंदर 4 लोग हैं जो आपसे खरीदते हैं, ठीक है? अब वो जो 4 लोग हैं वही तो आपका प्राइस डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है? उसके अंदर एक एमएसपी बताई हुई कि इतना तो आपको कम से कम देना पड़ेगा, ओके? वो उसी पे आपसे ले लेते हैं क्योंकि उसके ऊपर वाला डिमांड ही क्रिएट नहीं होने देते वो, ठीक है? लेकिन वो बाजार में जो बेच रहे हैं वो बहुत महंगा बेच रहे हैं। आपको क्या लग रहा है सीरियसली 50 रुपीज अ किलो इज पोटैटो राइट नाउ? आपको सही में लगता है 50 रुपीज जा रहा है फार्मर्स के पास? नहीं जा रहा। फार्मर्स के पास 10 रुपीज भी नहीं जा रहा। शर्म की बात यह है कि उनके पास 10 रुपीज भी नहीं जाता। लिटरली दिस इज द रियलिटी। जो बीच का मार्केट है ना वो सारा खा जा रहा है। तो मैं कह रहा हूं मार्केट के अंदर 30 रुपीज अ किलो बिके और फार्मर्स को 20 रुपीज मिले। जिसको आज 10 रुपीज नहीं मिल रहा उसको 20 रुपीज मिले और 10 रुपया अगर कंपनियां खाती है तो खाने दो। कंज्यूमर का फायदा और फार्मर का फायदा दो। यहां पर ये हो जाता है कि हाँ गवर्नमेंट को एक ये जरूर बताना चाहिए जब भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो कंपनी के साथ फार्मर्स का तो उसमें ये बकायदा लिखा हुआ हो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि इससे मिनिमम आप नहीं ले जा सकते। एमएसपी उस कॉन्ट्रैक्ट में साइन हो, क्योंकि जब आप कंपनी के वाइज कर रहे हो प्राइवेट कर रहे हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाइज हो जाएगा ना। अब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या चीज डलती है क्या नहीं डलती है ये तो ऑब्वियसली पर्सन टू पर्सन कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है। उसके अंदर गवर्नमेंट ने किया है कि नहीं किया मैं वापस फार्म बिल पढ़ूंगा आपको बता दूंगा कि उसके अंदर एक एमएसपी सेट हो जानी चाहिए कि इतना तो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक मैंने जितना फार्म बिल पढ़ा है उसके अंदर एक चीज श्योर है कि ज्यादातर चीजें फार्मर्स के सपोर्ट में। से फॉर इंस्टेंस अगर फाइट होता है कोई भी वजह से इन दोनों के बीच में कंपनी और फार्मर्स के बीच में तो बकायदा लिखा हुआ है कि द फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द फार्मर्स नॉट द कंपनी। रीजन बीइंग ऐसे कि फार्मर्स जो है उनको प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है कंपनी को कम ही हो सकती है बिकॉज कंपनी ऑलरेडी रिच है जो आ रही है वहां पे। यस सर ऐसे डायरेक्टली फार्मर्स मार्केट इस्टेब्लिश नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते ना, हो ही नहीं सकता। व्हाट्स द हर्डल? हर्डल बहुत बड़ा है। फार्मर्स इंडिया की जो है वो पहला बात तो इंडिया का अगर आप पूरा आपने पढ़ा होगा 9th 10th 11th में जब एसएसटी पढ़ी थी तो आपने पढ़ा होगा कि इंडिया के जो फार्मर्स है वो बहुत छोटे लैंड पे काम करते हैं और उनको एक जगह पे इकट्ठा करना और लाना इज अ वेरी बिग डिफिकल्टी। यहाँ पे कास्ट क्रीड रिलीजियन स्टेट वाइज और वाइज बहुत सारे झमेले आ जाते हैं, ठीक है। बेसिकली चलो सोशल हर्डल। इसके ऊपर अब हम लोग कल बात करेंगे जो कि लेस देन 1 मिनट बाकी है। वी विल स्टॉप इट ओवर हियर। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। कल कुछ क्वेश्चंस लेके आना आपने चाहे वो रियल लाइफ सिनेरियो से हो। वी विल डिस्कस एंड वी विल सॉल्व दोस आंसर्स, ठीक है देवांशी, राहुल एंड एवरीवन एल्स ओवर हियर दोस यू हैव नॉट टॉक्ड प्लीज ब्रिंग सम क्वेश्चंस लाइव क्वेश्चंस फॉर मी एंड फॉर ऑल ऑफ अस टू डिस्कस एंड clear that thing out in our mind. Okay everyone, thank you and have a great day ahead. Jai Shri Krishna.